Alright, guys, we will start today the topic process specification, which is part of the series of lectures which are related to the topic of creating requirement document using analytical tools. So previously we have seen data flow diagrams, process flow diagram, and data dictionaries, and now we will see a process specification. So many analysts define a process specification as everything else about the process, not already included in the other modeling tools. Indeed, it must contain the remaining information that normally consists of business rules and application logic. So basically, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में वो चीज़ कवर की जाती हैं जो कि किसी और एनालिटिकल टूल में कवर नहीं होती, और इसमें नॉर्मली बिजनेस रूल्स एप्लीकेशन लॉजिक से रिलेटेड जो है रिमेनिंग इंफॉर्मेशन वो रिप्रेजेंट करती है, वो इट मस्ट कंटेन दैट. सो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन स्टाइल में बेसिकली हम गुड बैड और अगली जो है वो सिनेरियोज को देखते हैं कि व्हाट आर द in that particular condition what is the good scenario, what is the bad scenario, what is the ugly scenario. अच्छा, इसमें pseudo code is a type of a process specification method. ठीक है. The most detailed and regimented process specification is pseudocode or structured English. आप structured English की form में एक अपने process को specify करते हैं. Its format is designed to require the analyst to have a solid understanding of how to write algorithms. So mostly जो pseudocode आपने data structures या किसी और subject में पढ़ा होगा कि ये algorithms को जो है represent करने के लिए use होते हैं. And the format is very COBOL-like and was initially designed as a way of writing functional COBOL programming language specification. COBOL एक basically programming language है, और ये जो pseudo code है इसका format जो है वो COBOL-like है, और the rules governing pseudocode are as follows. Pseudocode के rules क्या होते हैं? Use the do while with an end do to show iteration. ठीक है. iteration show करने के लिए आप इसमें do while loop इस्तेमाल करते हैं उसमें, और end do मतलब जहाँ पे end हो रहा है वहाँ पे end do while loop के end को specify करने के लिए. फिर use if then else to show the conditions. आप if then else से जो है इसमें conditions को show करने के लिए use करते हैं. Be specific about initializing variables and other detailed processing requirements. तो आपको इसमें ज़रा specific होना पड़ता है variables को show करने के लिए और दूसरी processing requirements को show करने के लिए. Pseudocode is designed to give analysts tremendous control over the design of the code. ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये उसको कंट्रोल देता है. अच्छा, ये एग्जांपल क्या है, सिनेरियो क्या है यहाँ पे? रिक्वायरमेंट ये है कि we have to calculate a 5% bonus of employees who work on the first shift and a 10% bonus for workers on the second or third shift. ठीक है. Management is interested in a report listing the number of employees who receive a 10% bonus. The process also produces the bonus set. तो जो employees basically scenario ये कि जो employees first shift पे काम करते हैं उनको 5% जो है बोनस असाइन करना है, और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में होते हैं उनको 10%. और मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उनको वो ऐसी रिपोर्ट मिले जिसमें वो तमाम एम्प्लॉयज जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो शो हों जो कि जिनको 10% बोनस मिला है, यानी कि जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट पे काम करते हैं. तो इसका सूडो कोड यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, दिया हुआ है. सूडो कोड क्या है? इनिशियलाइज किया 10%, एक वेरिएबल समझ लें, ठीक है, और काउंटर एक कोई भी रैंडम वैल्यू है उसको 0 किया है. ओपन मास्टर एम्प्लॉय फाइल, ठीक है, वो कह रहे हैं मास्टर एम्प्लॉय फाइल जो है वो ओपन करे, और डू वाइल ये एक लूप में चल रही है. डू वाइल मतलब तब तक चले जब तक आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. इफ एल्स आगे कंडीशन आ गई, इफ शिफ्ट इज 1
तो बोनस जो है उसमें क्या होगा, बोनस उसका होगा ग्रोस पे, शिफ्ट पहली शिफ्ट होगी तो देन बोनस इज इक्वल टू ग्रोस पे इनटू 0.05 0.5% जो है वो बोनस मिला। एल्स शिफ्ट 2 और 3 है तो 10% मिला, और 10% के साथ ही जो काउंटर हमने जीरो किया था, काउंटर ऐड 1 टू काउंटर, मतलब काउंटर में 1 ऐड हो गया कि कोई एम्प्लॉय इस अगर 2 और 3 शिफ्ट का है तो काउंटर 1 हो जाएगा, मतलब हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी गिन रही है। एल्स एरर कंडीशन अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, अगर तीसरी या चौथी कोई कंडीशन ना आ गई है, मतलब ना कोई शिफ्ट 1 से 2 से 3 से कोई भी नहीं, कोई और ही एक कोई और शिफ्ट वाला भी है बीच में, तो वो एरर कंडीशन यहाँ पे जनरेट करेगा, और उसके बाद फिर एंड इफ हो जाएगा और एंड लूप, यहाँ पे ये लूप एंड हो रहा है। रिपोर्ट आपको क्या हो रही है, प्रिंट रिपोर्ट ऑफ 10% बोनस एम्प्लॉयज, काउंटर यहाँ पे चल रहा था और 10% जिनका बोनस था वो एम्प्लॉयज यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे, और इसलिए बोनस चेक्स जो प्रिंट होके और ये पूरा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। सो दिस इज अ सूडो कोड, जहाँ पे एनालिस्ट को ये पता लग रहा है बेसिकली कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रोसेस। और ये सूडो कोड जो है आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में होता है, यानी एनालिस्ट के पास ये पहुंच जाता है, मतलब इस हालत में आता है, सो दैट ही कैन and clearly take control of it. The above algorithm gives the analyst great control over how the program should be designed. For example, note that the pseudocode requires that the programmer has an error condition should a situation occur where a record does not contain a first, second or third shift employee. So basically ये वही वाली बात है, ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे दी हुई है एरर कंडीशन, ये उससे जनरेट होगी जब कोई एम्प्लॉय शिफ्ट 1, 2 और 3 से नहीं बिलोंग करता होगा, सो देयर इज सम अदर कंडीशन this might occur should there be a new shift that was not communicated to the information system department, ठीक है। तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसने कोई ऐसी शिफ्ट हो जिसको कवर ही ना किया हो, सो इन दैट केस इसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट से कि ओके व्हाट अबाउट शिफ्ट 4 और 5 और वट एवर देयर बोनसेस। many programmers might have omitted the last if check as follows, ठीक है। आप उस लास्ट इफ को, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा जो शिफ्ट को स्क्रीन आउट करने वाला था उसको आप ओमिट बहुत सारे प्रोग्राम में कर सकते हैं अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते। तो इसमें इस नेक्स्ट जो सूडो कोड में बाकी सब चीज़ें वही हैं, जस्ट वो एक्स्ट्रा जो इफ एल्स था वो उसको ओमिट कर दिया गया और बाकी चीज़ें वही हैं। सो दिस मेक्स यू कैन से सूडो कोड अ बिट शॉर्टर, ठीक है, अ बिट मोर स्पेसिफिक। लेकिन इसमें बस कैच इसमें ये है कि अगर ये प्रोग्राम जो है उस डिफेक्ट को, उस अनॉमली को, उस एबनॉर्मेलिटी को नहीं डिटेक्ट कर सकता जो कि रिकॉर्ड्स में मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास आप ये समझ रहे हैं कि शिफ्ट 1, 2 और 3 ही सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, कोई इसके अलावा कोई और शिफ्ट नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में कहीं पे मौजूद है, चाहे वो मिस्टेकनली वहाँ पे इनपुट दी हुई है, तो that means कि you will never be able to find out that record from your you can say database filter. You will never be able to filter out that. This algorithm simply assumes that if an employee is not on the first shift, then they must be either on a second or third shift, ठीक है। कोई अगर फर्स्ट शिफ्ट पे नहीं है तो इसका मतलब वो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है। ये जो दूसरे वाला सूडो कोड है ये एज्यूम कर रहा है इसका। Without this being specified by the analyst, the programmer may have omitted this critical logic, which could have resulted in a fourth shift worker receiving a 10% bonus, ठीक है। हो सकता है कि जो फोर्थ शिफ्ट है जो कि प्रोग्रामर या एनालिस्ट के ज़हन में नहीं थी, वो जो उसको भी 10% बोनस मिलना और वो ओमिट हो गया उस जो सूडो कोड की वजह से। As mentioned earlier, each style of process specification has its advantages and disadvantages. In other words, the good, bad and ugly. तो जिस तरह भी आप प्रोसेस स्पेसिफाई करते हैं उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं गुड, बैड और अगली सिचुएशंस।
अच्छा, गुड सिचुएशन क्या है सूडो कोड के केस में? The analyst who uses this approach has practically written the program, and thus the programmer will have very little to do with regard to figuring out the logic design. So analyst जिसने ये सूडो कोड लिखा है, मतलब वो उसने इतने डिटेल में और इतना वेल रिटन वो सूडो कोड दिया है कि वो एक्चुअली वो प्रोग्राम ही बन गया। उसको जस्ट प्रोग्रामर ने एक्चुअली बहुत थोड़ी एफर्ट करके उसको प्रोग्राम लिखकर उसे जो है फाइनलाइज कर लेगा। So this is the good condition, good situation. बैड क्या है? एल्गोरिथम बहुत डिटेल में है, लेकिन और उसे एनालिस्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाया है उसे डेवलप करने में। Many professions raise an interesting point. Do we need analysts to be writing process specification to this level of detail? In addition, many programmers may be insulted and feel that analyst does not possess the skill set to design such logic. तो बैड सिचुएशन क्या है कि आप ये समझें कि एनालिस्ट ने चूंकि बहुत डिटेल में प्रोग्राम लिखा है, सॉरी सूडो कोड लिखा है, तो ही ऑलमोस्ट डिड द जॉब फॉर द प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जो है उसको इंसल्ट फील करे कि ये एनालिस्ट की जॉब नहीं है, कि वो जी कि वो लॉजिक को इस लेवल पे जो है वो डिटेल में स्पेसिफाई करे। सो इट इज his job as a programmer कि वो ये सब काम करे। So yeah, so this is a bad situation. लेकिन गुड सिचुएशन क्या है कि एनालिस्ट मस्ट डू दिस, लेकिन बैड सिचुएशन ये है। और अगली सिचुएशन क्या है? Analyst spends the time, the programmers are not supportive and the logic is incorrect. ये सबसे अगली सिचुएशन है कि आप एनालिस्ट ने जो है टाइम स्पेंड किया है, प्रोग्रामर्स जो है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है और लॉजिक भी गलत है। रिजल्ट हेयर विल बी द I told you so, ठीक है, remarks from the programmers and hostilities may grow over time. So basically इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो प्रोग्रामर्स जो हैं वो एनालिस्ट को कह रहे होंगे कि देखो मैंने तो तुमने कहा था कि ये काम नहीं करेगा। तो और ये रंजिश जो ना टाइम के साथ साथ ये जो है वो बढ़ेगी। सो ये था सूडो कोड के केस में कि गुड, बैड और अगली सिचुएशन इन केस ऑफ सूडो कोड। Next one is case. Case is another method of communicating application logic. Application logic को communicate करने के लिए एक और method है, just like pseudocode. Although the technique does not require as much technical format as pseudocode, it still requires the analyst to provide a detailed structure to the algorithm. तो ये उतना फॉर्मेटेड नहीं होता जितना सूडो कोड होता है, लेकिन इसमें फिर भी आपको एज एनालिस्ट को वो चाहिए डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो एल्गोरिथम का बयान करना पड़ता है। यूजिंग द सेम एग्जांपल एज इन द सूडो कोड डिस्कशन वी कैन सी द डिफरेंस इन फॉर्मेट। सो केस क्या है? केस फर्स्ट शिफ्ट, अगर केस फर्स्ट शिफ्ट है तो बोनस 5% दे, केस सेकंड और थर्ड है तो 10% दे और काउंट ऐड 1 टू द 10% बोनस एम्प्लॉयज। और रिकॉर्ड जो जहाँ पे 10% एम्प्लॉयज आपने ऐड करने हैं, मतलब पिछली केस में काउंटर था और इसमें जो है वो केस वाइज जो है वो किया गया है। तो ऐड 1 मतलब जो बोनस एम्प्लॉयज के अलग से अरे है या रिकॉर्ड है उसमें 1 का ऐड इजाफा कर दे जैसे इस पे आए। केस नाइदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो वो केसेस जो कि पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट से है ही नहीं है, वो एरर जनरेट करें। एंड केस, एंड के सारे केसेस एंड किए और रिपोर्ट जनरेट की, 10% एम्प्लॉयज की चेक्स की और एंड किया ये, ठीक है। This format provides control as it still allows the analyst to specify the need for error checking. However, the exact format and order of the logic is more in hands of the programmer. Let's now see the good, bad, and ugly of this approach. So basically, इस केस के थ्रू जो है एनालिस्ट जो है वो कुछ कंट्रोल तो शो करता है, लेकिन उसमें उसकी डिटेल इम्प्लीमेंटेशन जो ना आप देखेंगे, इट्स नॉट लाइक वो उसने पूरी डिटेल दे दी, उसने जस्ट एक सिनेरियो बता दिया कि हाउ द प्रोग्राम विल लुक लाइक,
लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है ना वो आप प्रोग्रामर पे है। तो उसकी वो लॉजिक जो है ना कि क्या इनिशियलाइज करना है वेरिएबल, क्या काउंट, और ये जो जैसा ऐड 1 टू, तो ये ऐड किधर करना है, तो ये वो सब कुछ जो है ना वो प्रोग्रामर पे डिपेंडेंट है. So he just arranged and this just arranged you can say, and the thing, the program or algorithm in a simplified format. अच्छा, इसमें गुड क्या है, द एनालिस्ट हैज प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है, विदाउट हैविंग टू नो द फॉर्मेट ऑफ लॉजिक इन प्रोग्रामिंग. तो एनालिसिस में डिटेल डिस्क्रिप्शन उसने प्रोवाइड की, लेकिन उसको लॉजिक से कोई कंसर्न नहीं है. So because of this advantage, case takes less than pseudocode, ठीक है. इसको डेवलप करने में कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू pseudocode. Although this may be difficult, bad situation क्या है? Although this may be difficult to imagine, the analyst may miss some of the possible conditions in the algorithm. ठीक है. ऐसा होना वैसे बहुत कम है, लेकिन एनालिस्ट हो सकता है कि कुछ उसने कंडीशंस एल्गोरिथम में जो है वो ना डाली हो, जैसे कि कोई शिफ्ट डालना भूल गया है. दिस हैपेंस बिकॉज द एनालिस्ट इज जस्ट लिस्टिंग कंडीशन एज अपोज टू राइटिंग अ स्पेसिफिकेशन. ये इसलिए है कि एनालिस्ट जो है वो लिस्ट कर रहा है कंडीशंस को, बजाय इसके कि वो स्पेसिफिकेशन को लिखे. तो वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बेसिकली वो लिस्टिंग को बस कंडीशंस को लिखता जा रहा है. तो इट में हैपन के लिखते हुए उसको कोई टाइपोग्राफिकल या उसके माइंड से स्लिप हो गया, तो वो फॉरगेट कर, ही फॉरगॉट टू मेंशन सम शिप. Without formulating the logic as we did in the pseudocode, the likelihood of forgetting or overlooking a condition check is increased. ठीक है. चूंकि इसमें लॉजिक नहीं हम प्रोवाइड कर रहे होते, तो लॉजिक के बगैर से हम जो लिस्ट कर रहे हैं कंडीशंस को, केस 1, केस 2 और केस 3 इस तरह, तो इसलिए जो है वो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें कि आप जो कंडीशन वो वो फॉरगेट कर जाए, भूल जाए. तो जिस तरह केस फर्स्ट शिफ्ट है, बेसिकली केस सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, तो हो सकता है कि केस फर्स्ट के बाद वो सिर्फ केस सेकंड लिख दे और थर्ड का वो भूल जाए. तो इट हैपेंस. अगली सिनेरियो क्या है, केस लॉजिक कैन बी डिजाइन विदाउट कंसर्न फॉर द सीक्वेंस ऑफ द लॉजिक. ठीक है. That is the actual progression of the logic as opposed to just the possibilities. Thus, the logic can become more confusing because it lacks actual progressive structure. So basically आप लॉजिक डिज़ाइन करते हैं ये सोचे बगैर कि एक्चुअली लॉजिकली उनकी प्रोग्रेस कैसे होगी, लॉजिकली हाउ विल दे प्रोग्रेस. जस्ट आपने केस मेंशन कर दिए उनके बोनसेस बीच में, लेकिन लॉजिकली कौन सा चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, वो जानने बगैर आपने जो है ना सारे केसेस जो है ना स्पेसिफाई कर दिए. सो इसका मतलब है कि ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा प्रोग्रामर के लिए अंडरस्टैंड करना. As stated previously, the possibility of missing a condition is greater because the analyst was not actually following the progression of the testing of each condition. There is thus a high risk of specification being incomplete. So, कोई क्योंकि प्रोग्रेशन को वो इसमें मद्देनजर हो, ये इट इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि केस जस्ट मेंशन कर रहा है तो वो केस सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी पहले मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. या केस नाइदर फर्स्ट और ये भी पहले मेंशन कर सकते हैं. तो लेकिन इस केस में तो मैं हमें इट डजंट मैटर अ लॉट, बट मे बी सम अदर केसेस में प्रोग्रेशन जो है कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए कौन सी बाद में, ये मैटर करता होगा. So this is the good, bad and ugly scenario for the case. आज में हम इतने रखते हैं. नेक्स्ट प्री पॉज कंडीशंस आएंगी और मैट्रिक्स आएगा, और या ये दो हैं, ये हम बाद में करेंगे. तो यहाँ पे तक किसी के ज़हन में कोई सवाल, यू वांट टू ऐड समथिंग टू द डिस्कशन? जी, नो वन एल्स, तो फिर हम इस तरह करते हैं.